So you welcome to Frequency series, Hamza. Thank you. It's a pleasure to be here. Thank you so much. आपने time निकाला और इस platform पे you participated. Thank you so much for that. So, Hamza, आपका सबसे पहले तो आप मुझे बताएं आपका trip कैसा रहा? आपने road trip किया है from Karachi to Lahore. हाँ, it was pretty tiring, but done. हो गया. Okay. It's pretty okay. बहुत अच्छा है. बहुत अच्छी. It's such a nice road. One would not have expected कि अब हम तो सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद के आदी थे मोटरवे की सैर करने के, but माशाल्लाह the network has really spread across the country and it's pretty nice. It's a very good experience. So I'm more than anything proud that I can drive like this in Pakistan. Nice. So आपने कहीं stops भी किए? Did you stay somewhere or it was just a? हाँ, petrol gas up करना होता है क्योंकि it's like a 15-hour drive. So yeah, there was almost 4 or 5 stops, about 15 hours it took us. Oh, 15 hours long. And बच्चे जो थे, they were like in control क्योंकि kids they tend to get agitated. हाँ, you see the kids आजकल because of this COVID scene सबकी routines वैसे ही out हैं. So the kids slept also throughout for quite a bit of time. बच्चे ठीक हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं. They're like 6 and 8. माशाल्लाह सब उनको अकल आ गई है, आती जाती है कभी, मतलब बच्चों को आती जाती है, तो I'm okay. That's awesome. So let's start from the past. ठीक है? Yeah. बचपन से start करते हैं. How was your childhood like? जैसे कि I was reading and I was listening to so many podcasts and so many interviews as well कि आपके अबू जो थे, he belonged to a government sector, right? He was serving over there and mom was a musician, right? So how was your childhood with such dynamics, in a household? I think बड़ा carefree childhood था मेरा बचपन से ही, I think because of that, एक तो my father was a civil servant, yes, so उनकी civil servant, he was a high grade civil servant. So by the time we were born, so we were living in these GOR houses, which were massive, 5-6 कनाल के घर होते थे, तो उसके lawns होते थे, उसमें बड़े grounds होते थे. तो मेरा पूरा बचपन उन grounds में घूमते खेलते. Those are the memories I remember the most, my childhood. Me and Ali Noor, me more than Ali Noor, क्योंकि मुझे अपने आप से बातें करने का शौक था. तो मैं पूरा दिन जो था ना, वो बाहर ग्राउंड में फिरता रहता था, अपने आप से बातें. क्या बातें करते थे? Fantasies. I think it started with wanting to be this superhero who had like a bunch of belts on his thing and would put all these gadgets and all of that. जो सामने वो देखने को मिलता था, but everything. But it was always fantasy, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, imagining myself to do the unimaginable. तो were you like this troublemaker child या बिल्कुल खामोश अपनी ही धुन में मगन है? कभी इस तरह से शरारत नहीं की? नहीं, खामोश, but जब trouble होता था तो फिर next level trouble होता था. तो मार पड़ी हुई है अच्छी खासी? बहुत, हाँ, हमारे पड़ी हुई है, हमारे लोगों को भी बहुत मारा हुआ है. So yeah, मतलब not जानबूझ के, गलती से, मतलब वो trouble ये होता था कि I was clumsy, so I would end up creating a damage के बाकी सारे troubles अलग होते थे और फिर एक मेरा damage अलग. So not so proud of it, but yeah. But नहीं, बचपन की तो इसी तरह की memories है सारी. So फिर हमसा नहीं, अभी तक चलता है. अभी तक ये चीजें नेचर में होती है ना इंसान की, वो इजीली चेंज नहीं करती, उसको टाइम लगता है, काम करना होता है. Nice, that's interesting. तो हमसा फिर कैसे हुआ कि बचपन में अपनी धुन में रहने वाला एक बच्चा, ठीक है, और वो एकदम से लम्स में चला गया और वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ने, और फिर वहां से मुझे म्यूजिक पसंद आ गया. तो क्या बचपन से था कभी भी इस तरह से?
कि मैंने म्यूजिक तो मैंने कहा है ना, म्यूजिक तो मेरी रगों में, मतलब मैं पैदा ही एक ऐसे एनवायरनमेंट में हुआ कि my father has a beautiful voice, my mother plays a musical instrument. मैं उनके पेट में था जब वो सास की, because it's an instrument that her father actually developed over 40-50 years, and she was वो उनके साथ की partner in crime थी in developing that instrument more than anything else. So वो तो मुझे जो उसका exposure, I think वो naturally वो सारी sensitivities, वो I think वो सबसे ज्यादा जो influence मेरे ऊपर जो musically होता है, वो I think बहुत सबकॉन्शियसली होता है, और वो उसका सबसे ज्यादा जो आई थिंक क्रेडिट मैं देता हूँ वो उस टाइम का है जब मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त जो मैंने चीजें सुनी ना जानते हुए, वो मेरे साथ अभी तक रही. So yeah, I think that's a big influence also. But all that said, मैंने अपने अंदर का जो म्यूजिशियन था या सिंगर, म्यूजिशियन तो बाद की बात होती है, पहले तो आप for example, you discover that you have a voice. So that was when I was about 13. उस वक्त तक, my mother, मतलब I used to sing along. My parents used to sing. हम लोग drives पे जाते थे, ये लोग जाते थे. कभी भी when we were going outside of the city and all. So my parents would sing a lot of songs. Mostly फिल्मी गाने होते थे उस जमाने में. पुरानी इंडियन फिल्म के गाने या पाकिस्तानी फिल्मों के गाने, सुहेल राना के गाने. उस जमाने में वो बच्चों की कैसेट कहानियां भी आती थी, और सुहेल राना की कैसेट्स निकली थी, तो वो सुनते थे. तो वो मेरी म्यूजिकल जर्नी थी. फिर कजन्स आए, कजन्स रॉक एंड रोल लेकर आए. वो अमेरिका में हमारे कजन होता था, सॉरी देहात में हमारे कजन होता था, अमेरिकन स्कूल में पढ़ता था, अली रिजवी. तो वो एक टेप ले आया, उसके अंदर सारे रॉक म्यूजिक, डेफ लेपर्ड, पॉइजन, दिस इज द 80s. तो फिर एक और दुनिया खुल गई. उससे पहले हम अपने वालिदैन के इन्फ्लुएंस में ज्यादा थे, उनका दिया हुआ म्यूजिक सुनते थे. फिर हमारे कजन्स, they just exposed us to all the heavy metal and hard rock that was the mainstream music at that time. तो फिर वो सीन शुरू हो गया. फिर वहां से तो रिकॉर्ड म्यूजिक की जर्नी शुरू हुई. फिर अलीनूर का शौक आई थिंक बहुत ज्यादा डेवलप हुआ. मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हो गया कि चलो एक टैलेंट है. और because you see you're in an environment where everybody is one way or the other interacting with music. मतलब टैलेंट की बात करें तो मेरे वालिद साहब की जो आवाज है वो इतनी यूनिक आवाज है कि मतलब जो भी सुनता है वो कहते कि जब मैं छोटा होता था, मैं सड़क पे चल रहा होता था, तो लोग मुझे रोक के पैसे दे के कहते थे गाना सुना. So हाँ, it was like that for him. So so that was there. So it was Noor who actually really pushed, and he said के तुम्हें भी म्यूजिक करना चाहिए. In a way मेरे अंदर वो I guess वो टैलेंट की ज्यादा थी कि I could compose, I could think words. मेरे अंदर naturally extractions करने की capability, I think वो genetically मुझे ज्यादा pass on हो गई. For example, इतने सारे लोग हैं घर में, तो वो ज्यादा मुझे मिल गई. अलीनूर को मेहनत करने की जीन ज्यादा मिल गई. So that's how he took the music journey seriously. I got into music seriously the day I actually joined the band. उससे पहले आइडियाज में अलीनूर के साथ मैं कभी कभार भी now and then कुछ करता रहता था. बट मेरा ये था कि लम्स जाने हैं. My father was a Fulbright scholar. He went to Duke University. He was doing वो साइकोलॉजी में PhD करने जा रहे थे, मगर उनकी फिर ये बहन का इंतकाल हुआ. उसी के चक्कर में फिर he came back and became a civil servant. He had humble beginnings. Life was tough for him when he started out. So all that said, उनका जो डायरेक्शन था, he wanted both of us to get into Harvard, पढ़ने जाओ. तो while we were doing music, I think हमारे घर में पढ़ने लिखने का एक रिवाज था. I think that वो जरूरी है. Not necessarily academic, but एक साइड पे lawyers हैं, वो भी बहुत intellectual activity है. फिर even though my father is a civil servant, but all his brothers and sisters, went to universities, educationists हैं. So yeah, अपनी एक intellectual training की, को consciously उसको pursue करना, और knowledge based intellectual training करना. Because today I feel intellectual training की बड़ी forms हैं, practice based भी होती है, knowledge based भी होती है. So but yeah, things like studying history, philosophy, social sciences, so that was something वो हमारी बचपन से ही एक हमारे साथ, वो भी जिस तरह म्यूजिक था तो ये भी एक साथ एक थीम चलती आई. तो उस थीम, मेरा तो उस थीम की तरफ ज्यादा रहा.
ध्यान बन गया. मैं तो PhD करने जा रहा था. I wanted to get into academia. But as I was अब वो 20 की एज में, you know, you just realize के, you know, that it's the world becomes your oyster. You know, आप सोचें अगर आप बस करना शुरू कर दें, go ahead and do it. That's the age. You know? And और ऐसा रहना चाहिए. सच्ची बात तो है, पूरी जिंदगी रहना चाहिए. I think लेकिन that's just the beginning. इस तरह से यू नो जब फैमिली में सारे एजुकेशनिस्ट हैं, ठीक है, फिलोसोफर्स हैं, दे आर लाइक वेरी एकेडमिकली स्ट्रांग पीपल, एंड यू नो योर फादर इज वेल लाइक सिविल सर्वेंट, ठीक है, तो उनका ना एक माइंडसेट बन जाता है कि नहीं, मतलब कि ठीक है, म्यूजिक को एज अ पैशन तुम लेके चल जाओ, करियर मत लेके चलो. जैसे हम, मेरे भी यू नो कोई भी क्रिएटिव आइडिया आना तो माय पेरेंट्स यूज्ड टू कि नहीं नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं है, तुम प्रैक्टिकलिटी की तरफ चलो. सो इस तरह से स्ट्रगल आई थी जब यू नो यू डिसाइडेड कि नहीं मुझे इस राह पे चलना, मेरे यही कॉलिंग है. वो अलीनूर की स्ट्रगल थी. मैं वही तो कह रहा हूं, वेरी लकी गाय दैट वे. मेरी स्ट्रगल से मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में हो रही थी कि मैं आगे कैसे अपनी एकेडमिक्स को बढ़ाऊंगा ना, होता है वो भी. बट एट द एंड ऑफ द डे मेरा हुआ क्या कि सडनली मेरा ऑल थ्रू आउट दिस टाइम मेरा एक नूरी के साथ एक हमेशा एक इंटरफेस रहा है. Every now and then I would come and contribute a composition, come and sing. Alinur always wanted me to be the singer of Nuri, wanted to be the guitarist, and all of that. वो एक ideas थे, but I think वो मेरा इतना interest ना show करने में उसकी अपनी एक बहुत growth हुई, बहुत journey हुई. I think he really evolved as an artist in all of that. वो अगर शायद मैं उस तरीके से इन्वॉल्व होता, वो अपनी शायद इतनी डायमेंशंस ना एक्सप्लोर करता, क्योंकि मैं नहीं होता था, तो फिर सारे जो मेरे काम भी होते थे वो भी फिर वो he learned how to do it. So both of you actually helped one another to be what you guys are today. Of course, because वो जो जितना भी मेरा वो इंटेलेक्चुअल काम था या जो भी मेरी यूनिवर्सिटी था, व्हाटएवर, अब्बा मुझे शायरी पढ़ाते थे, मुझे शायरी पढ़ने का शौक था. So वो it came into say the songs that I put together, the especially the writing the words, I think wahan pe because so I got into Nuri the day like I formally became a part of Nuri like a month before the first Nuri gig was to happen. That's after about 7 years of hard work consolidated by Noor and Muhammad Ali, later on Gambi and everybody. So मेरा तो ये हुआ कि वो suddenly गिटारिस्ट ने कहा कि यार मैं नहीं अवेलेबल, मुझे ICI में नौकरी मिल गई, वही प्रैक्टिकल रूट वाली बात. तो वो मुर्तजा जाफर था, तो वो and he was not a part of the band like that. He was a part of the band because the band was starting out. It was a gig. At the end of the day, it was the more I think about it, it was just about a gig. तो gig की तैयारी के चक्करों के अंदर वहाँ से वो एक दिन वो I just left Lumps क्योंकि मेरे भी थोड़े से I was thinking कि you know वो मैं एकेडेमिया से भी थोड़ा सा डिसहार्टन हो रहा था, तो उसकी ब्यूरोक्रेसी देखने को मिली, उसके all that चीजें देखने को मिली. So वो पिक्चर क्लियर ज्यादा करीब से नजर आई, तो वो कोई इतनी इंस्पायरिंग उस टाइम पे नहीं लगे. All मतलब I still have a lot of respect for all these people, but I think for me it was not just you know cutting through like that. So वो suddenly I decided कि मैं कोई और रूट लूंगा. उस चक्कर में एक दिन वो गिटारिस्ट चला गया. उस टाइम पे सुनो कि मैं वो जवान बन रही थी, मैं I helped start वहाँ पे. Then I started writing lyrics with her on the songs. दिल की कसम जैसे था, नींद आए ना था, एक एल्बम पूरी तैयार हुई थी, इनके सिर्फ वर्ड्स खत्म हो रहे थे, वो क्लोजिंग की तरफ था. जारे was an additional song we made, तो वो मुझे याद है क्लियरली कि मैंने रणूर के साथ में बैठ के बनाया था. बट उसका सारा बजाना गाना मैंने कुछ नहीं किया. मैंने वो सिर्फ उसके बाद एक कॉन्सर्ट हुआ था, उसके अंदर मैं गया था, मैंने गिटार मुझे बजाना नहीं आता था. मेरे पहले 2 साल मुझे चुटकियां पड़ी स्टेज पे, चीखें पड़ी कि भाई कर क्या रहा है, तुम्हें तो बजाने नहीं आता. लाइक वो सारे यू नो इतने मंझे हुए 7-8 साल के म्यूजिशियन, ड्रमर लाइक गम्बी, इवन जाफरी एज अ बेस प्लेयर, अली नूर, ही इज एन एक्सीलेंट गिटारिस्ट. और ये अली हमजा जो है रिदम गिटार पकड़ा, उसको कुछ नहीं पता कि वो कैसे बजाए. सो let alone that गाना भी नहीं आता, you know, स्टेज के ऊपर it's such a technical thing, learning how to sing properly in time and tune. आप ऐसे अपने महफिलों में गा ले, you know, doing it professionally. So my professional training happened on the job. मेरी कोई ट्रेनिंग थी नहीं उस तरह से. तो वो मेरा जो by nature आया था,
because obviously because of the family background as well, right? और फिर वो yes भाई well I think जो मेरा जो all that said मतलब मेरी एक ऐसी capability है जो मैं nurture करता है which is my songwriting capability. I put music and words together and compose a something. वो मेरा day one से process है, but that is not just a musical process, it's an idea communication process. उसके अंदर music एक tool है. ठीक है. You get my point? Yes. So I'm more of a songwriter. I communicate like ideas of about song, and then everybody comes together to put it together in terms of a production or a song, and but I think जो मेरी training हुई वो performer की हुई, वो मेरी एक सही training हुई because मैं बहुत shy इंसान था और बिल्कुल मुझे लोगों के साथ interaction इतने mass scale पे करते हुए मेरी back हो जाती थी मुझसे. That was something. So वो मेरी एक सही training I think. और वो जो training है वो it transcends beyond just learning how to perform music. It's a human interaction that is taking place. So connecting with people, creating a rapport, लोगों की attention को लेके रखना, उसकी जो वो journey थी वो मुझे आई. अच्छा एक और एस्पेक्ट था कि I was into theater also when I was at college and school, so I liked acting. मैंने acting की थी, lead roles भी किए थे काफी. So वो फिर वो वाली जो सारा साइड था, it was a nice coming together of all my earlier experiences. Even जो लम्स के अंदर PowerPoint सीखा, Excel सीखा, वो कितना काम आया शुरू में. More than being a musician, I was, the back end of the band. Admin के काम करना, accounts handle करना, websites की चीजें handle करना. वो lumps की training थी वो, I could. तो सारे लोग मुझे देखे कहते यार क्या तू लिखता रहता है, Excel फाइलें बनाता रहता है. All these musicians, what the hell are you doing, dude? You're like you're supposed to be a rock star. तुम लिखते जाते हो, हर चीज लिखते जाते हो. मेरा मजाक बन गया. तुम लिखते जाते हो. तो वो पहले एक दिन ट्राई किया था ना, तो थिएटर में मजा नहीं काम करके. थिएटर में तो बहुत मजा आया. सच्ची बात है. अभी ये पैंडेमिक ना शुरू हो जाता तो me and a friend were actually, I'm in Karachi, so a friend of mine and I we were actually doing our readings. We had started the process कि यार let's do a play, like a musical play. Yeah. तो वो प्रोसेस शुरू हो गया था. So yeah, ये सब connected है. एक परफॉर्मेंस की जो अच्छा very interestingly जब you look at जैसे एक वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक है, इस तरह एक ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक है. क्लासिकल म्यूजिक का मतलब ये होता है कि उसकी कोई थियरी बनी, उसको it became an objective phenomenon rather than just a subjective expression. क्योंकि जो बाकी फोक म्यूजिक होता है वो essentially subjective expressions होते हैं. हाँ, पोएट्री के थ्रू आप बहुत ऑब्जेक्टिव बातें कर लेते हैं उसके अंदर, उसकी लिरिक्स के थ्रू. But making music a very objective process, वो क्लासिकल म्यूजिक की डोमेन at the end of the day. वहीं से ये सारा फ्यूचर का पॉप जो भी आप बाद में रिकॉर्डेड म्यूजिक निकला है, पोस्ट रिकॉर्डिंग, आई थिंक वहीं से वो सारे उन्होंने टूल्स गैदर किए टू बिल्ड इट लाइक दैट. सो यहाँ पे जो क्लासिकल म्यूजिक की जो अर्ली फाउंडेशंस हैं उसके अंदर तो दे एड्रेस्ड इट लाइक अ परफॉर्मेंस. साउथ एशियन नट शास्त्र की एक टर्म है, उसमें डांस भी है, थिएटर भी है, म्यूजिक भी है. वो एक पहला इडिक्ट है उसके ऊपर, और उसमें वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके सारे वो भाव और अदाएं और श्रुति, ये सारी जो हम सुनते रहते हैं म्यूजिक की टर्म, ये थिएटर में भी अप्लाई करती हैं, डांस में भी अप्लाई करती हैं. सो आई थिंक दैट वे it all comes together. So today I can't मतलब, and today especially today जब we're in such a visual world basically means that everything has come together. The audio is not just operating by itself. The audio and the visual has come together. The visual world also doesn't operate without the audio world. We tend to forget that. You get my point? This is still audio happening. So yeah, it's we're again moving into that interdisciplinary, multi-dimensional space altogether. Yes, with new tools. So yeah, so I think that's what मुझे ज़्यादा चीज़ वो engage रखती है इस सारे process में. It's not just about making the song. मेरे पूरे होलिस्टिक प्रोसेसेस ट्रिगर होते हैं इसके अंदर. कुछ अपने प्रोफेशनली मैं उनको एक्सप्रेस कर सकता हूँ, कुछ को मैं नहीं कर पाता हूँ, कुछ की जगह ही नहीं, कुछ के लिए अपने कमरे में काम करना होता है उसके ऊपर. ये जो शिफ्ट था ना फ्रॉम नूरी रॉक बैंड, राइट, जैसे आपने बोला कि 20s में एक नई साउंड सुनने को मिली,
तो बंदे ऑटोमेटिकली यू वॉक टुवर्ड्स दैट पाथ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी एज ग्रुप्स को अच्छा लग रहा है, राइट? लेकिन फिर हमने ये देखा कि नूरी से आपने काम करते करते आप फोकलोर की तरफ ज्यादा, आपको हमेशा मैंने वही देखा कि यू नॉट दैट हेड बैंगिंग रॉक बैंड काइंड ऑफ अ पर्सन, यू आर मोर ऑफ अ लाइक सितार हो, जैसे आपकी अम्मी का बहुत एक खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है सागर बीना, राइट? जो कि उनके, मैंने आपको कहा ना कि वो मैं पेट में मेरे ऊपर पहला ही उसका इन्फ्लुएंस आया, हाँ, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बिकॉज नूरी के अंदर भी वो जो फोक एलिमेंट्स थे, वो सारी, वो आई थिंक दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग इनटू इट। ऑल्दो आई मस्ट टेल यू दैट for example, if you talk about folk, then Ali Noor made a song like Manware. You get my point? Yes. It's something, it's a legendary song at the end of the day. So yes, Ali Noor के अंदर वो है, but I think वो उसका एक थोड़ा सा reaction भी था to the quality and the level at which the music is produced in a country like Pakistan compared to what is done outside of Pakistan. Even in somewhere like India or abroad. हालांकि अब बहुत बेहतर है, लेकिन मैं जिस वक्त से हम लोग आ रहे हैं उस वक्त तो बहुत सारे चैलेंजेस थे जिससे एक जर्नी से गुजरा है सारा ये प्रोसेस। तो उसका एक रिएक्शन था, फिर उसकी वजह से ही इंट्रोड्यूस व्हाट ही वर्कड ऑन एंड देन व्हाट केम आउट एज नूरी वाज it was a contemporary, it was a modern, so all these sounds, all the हमारे जो pop music की journey है उसकी वो totally correlated है with the journey of pop music, of the global pop music, of the western pop music, because उसी के साथ, चलो ठीक है लैग में चलती है usually 5-8 साल के लैग में चलती है, लेकिन वो उसी के साथ correlated है। और वो जिस तरह वो प्रोडक्शन, because that's a global standard बनता जा रहा है। हिंदुस्तान में भी फिल्मों के अंदर वैसे हुआ। एक टाइम था जब जहाँ पे ये लोग अपनी अपनी आइडेंटिटीज को ज्यादा मेंटेन कर रहे थे, बट 50s 60s के बाद वो I think started changing altogether, because I guess the whole technology, the whole format was developed in the West, तो उसी के ऊपर सारा बिल्ड हुआ है। और जितना भी हमारा पॉपुलर म्यूजिक है वो मेन स्ट्रीम जो पॉप है वो पूरा वो ग्लोबल पॉप म्यूजिक सीन के साथ है। उसकी मतलब the uniqueness we bring on it is the expression, is our rawness, is एक है पाकिस्तान के अंदर एक चीज है, एक पाकिस्तानी म्यूजिक में एक चीज है, एक एक्सप्रेशन में एक चीज है। और वो आई थिंक उसमें रोहेल वाज वेरी स्मार्ट इनफ टू रियलाइज कि उसकी रूट्स उसके फोक में है। सो दैट्स हाउ कोक स्टूडियो स्टार्टेड इवॉल्विंग आल्सो। ऐसे सोचते रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा आई थिंक हमारी कौम इस थोड़ा सा like they connect with it, उनके अंदर कहीं ना कहीं हमारी, but I'm talking about something which is non-verbal, the musicality of it. एक तो उसके अंदर क्या spirituality, उसको आप, मैं उसको पता नहीं spirituality बोल सकता हूँ, because it's just वो एक genetic सी चीज है। जैसे हम कोई म्यूजिक सुनते हैं, अपना लोकल म्यूजिक सुनते हैं, आपको, मुझे मुश्किल होता है आजकल उसको वर्ड्स में डिफाइन, क्योंकि एक रेजोनेंस होती है, एक ऐसा कनेक्ट होता है जो हम जितना भी दूर दूर का म्यूजिक सुन लें, वो एक है, एक सर्टेन सेट ऑफ पीपल हैं जो कहते हैं हमने जैसे कि हमारा म्यूजिक जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ सेकेंडरी म्यूजिक, द कटिंग एज म्यूजिक, द बेस्ट म्यूजिक इज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, who say that. I do not disagree with them at one level, because वहां पे सीधी बात है यार, मेहनत, input, time, all of this is what eventually gives you the results. Coordination, structures, एक organization, वहाँ वो यहाँ पे unfortunately उस तरह से नहीं है। तो उसके अंदर बहुत सारे amazingly talented musicians हैं ना, वो totally फिर वो फिर अपनी उस जोन में ही ऑपरेट करते हैं। I've met a lot of people who are very good with what they do, but उनका जो स्कोप है या वो इस मुल्क के नॉर्मल एवरीडे लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं करता। उसके लिए आपको बड़ा स्पेशलाइज्ड किस्म का लिसनर भी होना पड़ेगा। शायद वेस्ट के अंदर यू कैन बी नॉर्मल लिसनर एंड लिसन, बट पाकिस्तान के अंदर यू स्टिल हैव टू काइंड ऑफ स्पेशलाइज yes to be able true. to listen to it. बिल्कुल। So yeah, जी बताइए। ओके, नहीं बस आई थिंक बातों में आगे ये जो अब जैसे म्यूजिक, मुझे लगता है कि जितने भी हम आर्ट फॉर्म्स आर ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ऑन, राइट? be it dancing, be it theater, be it song writing, be it music, anything, right? तो
इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी उसी तरह से मिलता है, जैसे कि you know it's very easy for people to criticize a song, it's very easy for people to say कि यार ये गाना अच्छा नहीं था, बुरा था, बहुत easily, right? जबकि दूसरे प्रोफेशंस में इतना हम क्रिटिसिज्म को शायद उस तरह से फेस नहीं कर रहे थे, especially at a larger scale. So how do you deal with such sort of criticism? So on the spot I think वो एक बहुत ह्यूमन सी स्पेस होती है, you know, और वो I think मैंने देखा है, आपको कुछ अच्छा फीडबैक आता है आपको खुशी तो होती है, लेकिन जब आपको कोई बुरा फीडबैक आता है तो आप ज्यादा हर्ट फील करते हैं, आपकी टेंडेंसी होती है कि आप उसके ऊपर you know, and this especially happened when we were doing CS11, तो वो तो like एक पूरी लिस्ट होती है कमेंट्स की, we were going through and suddenly you read some, you keep reading good and then you see one bad one and you get stuck on it, you forget about everything else, you get my point? वो फिर वो ऐसी प्रायोरिटी ले लेता है कि आप, तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन मुझे लगता है, आई थिंक हम सबको होता है शुरू में, फिर हम उसकी इवेंचुअली हाँ अभी तक मुझे कि एक नेगेटिव कमेंट एकदम से ड्यूरेशन उस इफेक्ट की कम हो गई, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इफेक्ट नहीं होता है वो ऑन द स्पॉट होता है, वो कितनी देर सस्टेन होता है मेरे सिस्टम में, वो अब कम हो, ये मैं जरूर कह सकता हूं, बिकॉज़ मैं उसको कॉन्शियसली उसके बारे में अवेयर हो गया हूं कि ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है. सो और उसको करने के लिए यू हैव टू थिंक बिगर, यू हैव टू एक तो बात ये कि यार even the work that I'm creating, like with every day passing, I'm realizing music, any piece of music that you work on, anything that you do, it's a process in the making. मैंने एक गाना निकाल दिया, अब उस गाने की आप जर्नी देखो कि सबसे पहले तो गाना इधर पैदा होता है, दिल में पैदा होता है, गिटार की तार से बजते हुए निकलता है, फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज आते हैं, उसमें सेक्शंस बनते हैं, वो बढ़ता है, फिर कोई और आके उसमें कुछ अपना की शक्कर डालता है, वो एक पूरी टीम से बन के वो एक गाना तैयार होता है, वो पैदा होता है, फिर उसकी और जर्नी शुरू होती है जहाँ पे वो परफॉर्म होता है, और फिर हम बजा के उसको बोर होते हैं तो हम कई वर्जन्स बनाना चाहते हैं उसके, फिर हम उसको उस तरीके से इवॉल्व करते हैं, फिर जो सुनने वाला है वो उसको उसकी अपनी कितनी जर्नी से गुजरता है. So it's a very live, real thing and it keeps evolving. So if I look at it as a process, even I am less, मैं अपने ऊपर भी इतना भारी नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार अगर ये मेरे दिल के साथ रहेगा, ये मेरे एक लिविंग चीज है, इसको अगर मैंने इसको मैं पालूंगा पोसूंगा तो ये बड़ा होगा सीधी बात है. एंड आई हैव टू डू दैट एज अ परफॉर्मर, एज एन आर्टिस्ट. मतलब आज मुझे जब भी इवन ऑनलाइन सेशन पे मैं गाता हूँ, कब गाने का तो मुझे शौक है, रियल टाइम लाइव प्रोसेस है, तो वो तो मेरे साथ चलता रहे. गाना एक बड़ी लिविंग चीज, मतलब with time I realized it's a being of sorts at the end of the day. It's not a product, it's not just sound waves, no. Okay. So हमजा, फिर एक आपका वो आया था शिफ्ट बीच में, आपने नात पढ़ी थी मदीने में, राइट? वहां से मैंने असल में अपनी आवाज डिस्कवर की थी. मैं 13 साल का था, मेरी नानी ने मैं स्कूल में कंपटीशन हो रहा था, नात कंपटीशन. अच्छा. वो पहली दफा मुझे याद है कि मैंने गाया था लोगों के सामने, वो नानू ने मुझे सिखाई थी. सब बात, 3rd प्राइज मिला था मुझे, तो वो आई थिंक उसकी सबसे इम्पोर्टेंट रेलेवेंस वो है. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक मेरे दिल में वो जगह है, लेकिन मैं कोई प्रैक्टिकली या बहुत अपने अंदर से सोच के अंदर ज्यादा स्पिरिचुअल आदमी नहीं हूँ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ काइंड ऑफ एन अमीबा दैट वे, मोर ऑफ इंसानों की जर्नी में आई थिंक ज्यादा मैं इन्वॉल्व रहता हूँ, नेचर की जर्नी में ज्यादा इन्वॉल्व. आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपना उस तरीके से जो ना प्रैक्टिकली उस तरह स्पिरिचुअल आई डोंट फील माय सेल्फ. बट तो फिर हम ना इंस्पिरेशंस कहाँ से लेते हो? ये मैंने आज गाना लिखना था, या मैंने कुछ लफ्ज, आज ही मेरी बात है इंस्पिरेशन जो है ना, आज मैं रिनूर के साथ डिस्कस कर रहा था, आज रास्ते के अंदर हम लोग आ रहे थे तो उस वक्त भी सवाल पूछे कि आपको क्या इंस्पायर करता है. यार मुझे एक बात रियलाइज हुई, इंस्पिरेशन जो है ना वो आर्टिस्ट का काम नहीं क्रिएट करता. एक सेकंड, इंस्पिरेशन आर्टिस्ट का काम क्रिएट नहीं करती, ये कैसे कह रहे हैं आप? ये कैसे? मुझे समझ, काम करते हुए इंस्पायर नहीं हो रहा होता. जब मैं म्यूजिक बना रहा होता तब मुझे इंस्पिरेशंस नहीं आ रही होती, तो मुझे ट्रिगर्स हो रहे होते. इंस्पिरेशन मुझे पहले हुई होती है. ठीक है, वो एक यू नो वो एक रियल टाइम प्रोसेस होता है, उसके अंदर मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करके पुट टुगेदर कर रहा था. यू गेट माय पॉइंट? या जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको
उसका एक एक्सप्रेशन निकल रहा होता है, वो एक्सप्रेशन इंस्पायरिंग हो सकता है। किसी और का एक्सप्रेशन मेरे लिए इंस्पायरिंग हो सकता है, बट वो मेरे वो म्यूजिक के प्रोसेस का डायरेक्टली हिस्सा नहीं है। You get what I'm trying to say? वो म्यूजिक मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं, वो एक सेपरेट प्रोसेस होता है जो सेपरेटली होता है, वो मेरी जिंदगी में मैटर करता है। मेरी इंस्पिरेशन जो है वो एज एन आर्टिस्ट नहीं है, मेरी इंस्पिरेशन एज ए ह्यूमन बीइंग ज्यादा है। That's what I'm trying to say. मुझे लोग इंस्पायर करते हैं। मैं उस तरीके से, मतलब कोई गाना बनाते हुए मैं किसी के गाने से इंस्पायर नहीं होता। बाद में मुझे पता चलता है अच्छा कि यार मैंने इस गाने से, ये पार्ट इस गाने से मिलता है, फॉर एग्जाम्पल। ओके ठीक है, यस यस। वो इसलिए होता है क्योंकि जितना भी म्यूजिक है ना दुनिया में, वो आई थिंक हम सब ये कर रहे होते हैं कि हम वो एग्जिस्टिंग एक पूल में से कुछ निकाल के, कुछ परम्यूटेशंस निकाल के अपने एक्सप्रेशंस के साथ उसको पुट टुगेदर कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज अ परम्यूटेशन। सो दैट्स व्हाट ओरिजिनलिटी इज, आई थिंक टुडे, what I realized. It's about finding your expression and expressing honestly whatever your बाकी सारे टूल्स हैं, आप सीखते जाते हो, आप सूखते जाते हो। आप सुर में गाना सीख सकते हो, आप बेसुरे तरीन हो, आप सुर में गाना सीख सकते हो। ये कोई टैलेंट की बात नहीं, सुर में आना, सच्ची बात है। नहीं, सुर का तो बड़ा एक लेवल्स डिफाइन होते हैं कि किस तरह से उसका राग है, फिर सुर है, फिर किस तरह से आपने उसकी पिच डिफाइन। सुरीला होने का मतलब है कि आप सुर में गाओ, आप बेसुरे ना हो, ठीक है ना। उसका मतलब है कि जो नोट्स आपने गाने हैं वो सही गाए हुए। वो एक ट्रेनिंग है जो आप कर सकते हैं, और उसमें वो किसी के लिए, किसी खास आदमी के लिए नहीं बनी, वो हर एक के लिए बराबर। ठीक है, वही पैटर्न है। आती है आपकी टिम्बर से, आती है आपकी टोनैलिटी से, आती है आपकी जितनी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ये रेजोनेटिंग पार्ट्स हैं वो किस तरह रेजोनेट करते हैं, उससे वो आपकी यूनिक बॉडी उससे निकल, फिर आपकी सोच होती है, आपकी फीलिंग्स होती है। तो यू बिलीव इन सोलफुल म्यूजिक, कि सोलफुल म्यूजिक क्या होता है फिर, जैसे आर्टिस्ट बड़ा कहते हैं ना, जो वो आपके वजूद को हिलाता है, आपको पता होता है, आप उसको जब सुनते हैं तो आपके वजूद को हिलाता है, आपको तो किसी ना किसी तरीके, कभी आपको खुशी होती है, कभी आपको आंसू आ सकता है, कभी आप उठ के नाचने सकते हैं, वो आपकी एग्जिस्टेंस को हिलाता है। वो सिर्फ, हाँ, वो मेरे ख्याल से, अच्छा अब आप कहेंगे कि सोलफुल, मुझे फिर उसमें तो ईडीएम भी आ सकता है, डांस म्यूजिक भी आ सकता है, वो भी आपके वजूद को हिलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जो हमजा को, फॉर एग्जांपल, या किसी आर्टिस्ट को लगा कि दिस इज समथिंग जो कि ना अवाम को या तो भंगड़ा शुरू करवा देगा या उनको बिल्कुल सोच पे मजबूर कर देगा या आंसू ले आएगा, तो अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो ये अवाम के साथ भी होगा क्या? ये एक्सपेक्टेशन सही है? हम कोशिश कर सकते हैं इसको एक्सट्रैपोलेशन की, और उसकी बेस पे ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन शेड्स ऑफ एक्सप्रेशन। आपने गम को एक्सप्रेस करना है तो यू नो कि आप किसी को सुनते भी आपको पता है गम एक्सप्रेस हो रहा होता है। डू यू गेट माय पॉइंट? यस यस। ये तो शेड, ये तो एक वो है, बट बाकी आई थिंक सब तुक्के ही मारते हैं, जितना लोगों को पसंद आ जाता है फिर उसको करते हैं। हाँ, ये एक अलग बात है कि विद टाइम जब आपके पास टेम्पलेट्स आ जाती है तो फिर आप टेम्पलेट्स की बेस पे यू कैन पुट टुगेदर समथिंग व्हिच कैन कि अच्छा ये टेम्पलेट इधर अप्लाई, हाँ तो वो हम वो अंडरस्टैंडेबल कमर्शियल लेवल पे भी करते हैं, नॉन कमर्शियल लेवल पे भी करते हैं, तो सबका पार्ट है वो, तो कि हर आर्ट फॉर्म के अंदर वो चलता है। क्योंकि बात ये कि हम लोग भी तो उसी से इंस्पायर हो रहे होते हैं, हमने कुछ मतलब हम लोगों को भी तो उसी ने ट्रिगर किया होता है, हमने भी तो वही देखा होता है, वही हमारे सिस्टम के अंदर फीड इन हुआ है, जो कुछ हमने देखा है, जो कुछ हमने सुना है, उसी को फिर हम कुछ जोड़ जाड़ के अपना कुछ निकाल। बिल्कुल। So what I'm trying to say is कि एक टेक्निकल ट्रेनिंग है हर आर्ट फॉर्म की, लफाजी की भी ट्रेनिंग है, म्यूजिक की भी ट्रेनिंग है, विजुअल की भी ट्रेनिंग है, बट वो उसके पीछे एक जो उसकी जो असली क्रिएटिविटी आपके एक्सप्रेशन की है, और वो एक्सप्रेशन किस तरीके से बनता है वो बहुत उसका सिर्फ म्यूजिकल डायमेंशन नहीं, उसमें आपकी सोच भी है, आपकी फीलिंग्स भी है, आपकी मतलब एज आई सेड आपका फिजिकल मेकअप क्या है, आपकी बॉडी का जो मेकअप है वो डिटरमिन करता है कि आपकी आवाज कैसी है। हाँ, this is a very nice point वैसे। हाँ, true. You get what I'm trying to say? Yeah. तो हम सर ये जैसे हम बात करें ना, जैसे कि लोग कहते हैं जैसे कि आर्टिस्ट जो बंदा होता है ना, उसका पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ बड़ा ना एक डिफरेंट होता है।
जिसको हम अपनी जुबान में ना बड़ा बकरा होता है बड़ा बकरा होता है। तो व्हाट इज लाइक, जैसे आपसे कभी कोई पूछे, एक हम जोन में बैठे हो कि हमजा व्हाट इज, या तेरे लिए जिंदगी और मौत क्या है, ये तुम इसको कैसे देखते हो, या हाउ डू यू नो लाइक कैरी ऑन विद योर लाइफ, कुछ सोचा हुआ है, कोई ये मेरा पॉइंट रीच करना, कोई गोल ऐसा डिफाइन किया हुआ है? तो इस तरह में क्या सोचा था फिर? गोल्स के मामले में बड़ा बुरा हूँ, सच्ची बात बताऊं। हम काफी आवाम वैसे होती है। बट ऑल दैट सेड, जिंदगी और मौत, अब देखो ना, ये एक तो ट्रिक है। देखो, अगर मैं कहूँ कि जिंदगी, अगर मैं अपने आप को कह दूं कि अच्छा जिंदगी है, मौत है, और एक सफर है, दोनों सफर है, चलते जाएंगे, तो अच्छा ठीक है, आगे भी चलता रहना, क्या मसला है। तो आई थिंक मौत एक बड़ा अच्छा एक वो लगा हुआ है दरमियान में, एक फ्लैग के भाई इससे पहले जो कुछ करना है कर लो, ये जिंदगी और वो जिंदगी। सो हाँ, मुझे दोनों से ये कहना कि मुझे डर नहीं लगता, ये गलत बात हो गई। आप अपने आप को बालातर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस मैं इनमें हूँ, और इनका जो भी हक है मुझे अदा कर, जितना मैं बेस्ट अदा कर सकता हूँ मैं। आगे फिर क्या होगा वो दिमाग चलता है, हर बंदे का चलता है, क्यों नहीं चलता। और आजकल तो साइंसदानों का भी चलता है उसमें कि मौत का मंजर मरने के बाद क्या होगा। बिल्कुल ही लगता है डिफरेंट, हम सोच में और डायरेक्शन में चले जाएंगे। मुझे तो डर लगता है कभी कभी सोच के। हाँ, मुझे भी डर लगता है, इसलिए कभी जिंदगी जी लेते हैं। सही। तो हमजा, एक ना सेक्शन है जिसको ना हम कहते हैं थिंक फास्ट, ठीक है? अब आई विल से समथिंग, मे बी अ स्टेटमेंट और अ वर्ड, व्हाटएवर थिंग्स कम टू योर माइंड, लेकिन वो पहली चीज होनी चाहिए। आपने सोचना नहीं कि नहीं ये नहीं कहना, यू जस्ट हैव टू से इट। ओके, कूल। अच्छा जी, so let's start with it. What are birds made of? Fire. Because I'm thinking about the phoenix. Okay. How hot is the sun? पानी का बुलबुला। हाँ? पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला गाना। कोक स्टूडियो। यही था एक्सप्रेशन। हलवा पूड़ी। यमी। अली नूर। हेवी। हाँ? ठीक। What can I buy for 5 rupees? Nothing anymore. Candy, toffee. Okay. Tell me a secret. All of them. Just अच्छा ठीक है। गवाल मंडी के सिरी पर। जब गाना बना था थे ही नहीं। ठीक है। Name the best place. Home. What would be a better name for vital signs? Vital signs? क्या था वो? जरूरी इशारे। नहीं, क्या होता है? वाइटल को उर्दू में क्या कहते हैं? है उर्दू में तो समझ नहीं आ रही। एसेंशियल, वाइटल, सब कुछ निकल रहा। अहम तरीन इशारे। क्या था? ऐसे। अहम ठीक है। अहम इशारे। नाइस। अब ये कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं जिनका यू हैव टू आंसर ट्रूथफुली। आई मीन ऑब्वियसली हमारी सारी डिस्कशन ट्रूथ पे ही बेस्ड थी, बट वैसे भी ट्रूथफुली आप जवाब दिए सारे। I agree. I don't know वैसे, ठीक है। So, do you have any most embarrassing memory you can recall right now? It can be कोई भी टाइम हो सकता है, बचपन का था, अभी का था, जवानी का था। एक ही आजकल रिपीट पे लगी हुई है वही। क्या? क्लास 4 में था, 5 में था, मेरी पतलून फट गई थी पूरी, और सारे, मैं वाज इन अ बॉयज स्कूल, मेरे साथ जो हुआ था ना उसे, फिर तो मसला नहीं। हाँ? इतना फिर तो मसला नहीं है, या है ज्यादा? You think okay. when it's an all boys school. Okay. Anyways, how do you handle anxiety? How do you handle anxiety? I don't. I let it carry on. मतलब कैसे कंट्रोल फिर? बिकॉज आजकल तो वैसे जिंदगी हराम करके, और क्या। ओके।
और कैसे होती है एंजाइटी कंट्रोल? सबको आप पागल करते, फिर आपको सुकून आ जाता है, फिर सबको सुकून आ जाता है. Do you catch yourself singing in the shower? I'm sorry? Do you catch yourself singing in the shower? I used to. I've stopped doing it. Why? I have no clue. You have Well, no I have exactly the same. Anyway, move on. Next question. Can you mimic people's accent? कभी try किए? जैसे कि I've seen Terrible. My wife is very good at it. I'm terrible. Okay. TikTok की कभी वीडियो बनाई? हाँ? TikTok वीडियो बनाई? नहीं, देखी बहुत है. I'm a huge fan of TikTok. मैं बहुत अच्छा लगता है. मुझे आजादी है यार. मैं you know it I don't know, it's just like, especially when because they do something creative every now and then. जो भी है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव लोग करते हैं. एक तो आप ढूंढने घुसो ना उसमें. Okay. तो वो पुश कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटीज को. ऐसे नहीं है कि अच्छा आज मैंने ये खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया. कोई राय नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे. Expressing themselves. So I really like it. Yeah. I would love to do something with it, but I'm a different generation. I'm a procrastinator generation. So who thinks हम like हर that? चीज different pace. हाँ यार, नई generation very different है. As these kids are like, I don't know, I presume you and I belong to the same generation, or might be one generation apart, or at best me being in the senior generation. But all that said, as बहुत तेज होते जा रहे हैं, टक 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 काम करने वाले लोग हैं, तो हमारी बड़ी स्लो पेस तेज हो गई है ना, like because of technology, everything is happening very fast. So हम जरा आराम से काम करने वाले. तो हमारे बुजुर्ग उससे भी आराम से थे, और उनके बुजुर्ग उससे, वो तो एग्रीकल्चरल लेवल का था ना सीन के. बस आहिस्ता आहिस्ता इंतजार करो और इंतजार करो कब. पेशेंस का लेवल बहुत डिफरेंट था हमारी ओल्डर जनरेशन में. बहुत पेशेंस था. नहीं, आई डू फील के बुढ़ापे में मैं किसान बनना चाहता हूँ, सुकून से जिंदगी. बिल्कुल ही 4 महीने निकल जाना है. 5 महीने इंतजार करो खाने पीने का. ठीक हो गया. अच्छा, do you have any rituals which you carry before going into a gig or a concert or playing a song? कोई rituals हैं? कुछ भी नहीं, बस. हाँ, एक ritual है. I would not like to put that in public, but yeah. थोड़ा सा hint. हाँ? Inspirations होती हैं, कुछ inspirations लेता हूँ. ठीक है. Okay, ठीक है. What is love for you? Too complex now. Too complex. It's too many things. Yeah, it's like with every part of life, every iteration in life, there's a new meaning added to love, and I think it just keeps growing. Your understanding of it, something that you keep finding a new things about as you grow through, as you pass through life. You want to live it out, you try to live it out, but you keep discovering it. It has many dimensions. It has positive dimensions. You're saying it's like when you the time pass करता तो change होता जाता है, या understanding बढ़ाना? हाँ, understanding change होती है, फैलता जाता है, बड़ा होता जाता है. मतलब कहाँ आप सोचते थे कि यार एक बंदी से इश्क होगा, और कहाँ आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि आपको उसका भी ख्याल रखना है, इसका भी प्यार है, उसका भी प्यार है, उस पौधे का भी कब को भी कुछ हो जाएगा. So it just keeps expanding, and then you realize कि हाँ, मतलब love, what does it mean कि when you love, तो फिर आप उसको due दे सकते हो, जितना जिस चीज को आप love की intensity, उस feeling की. So yeah, it just keeps. So how much love you give to so many, कुछ को आप ज्यादा देते हैं, कुछ को आप कम देते हैं, तो वो भी हमने फिर कैटेगरी बना ली ना. It's a very broad, बहुत ही abstract सा word है ये, और इसके बहुत dimension. मुझे लगता है कि बहुत वजन है इस लफ्ज में, कि इस इतना वजन शायद कैरी नहीं हो सकता. बहुत मुश्किल है, राइट? बात सही. अच्छा, ओके. सो हमजा, ये ऑडियंस के सवाल हैं कुछ, ठीक है? अच्छा. Okay. Given a chance, you live this life again, would you go to Lumps or just focus on music from the get-go?
in principle, I don't agree with the question to start with, because जो हो जाता है. But yes, if I would, I'll definitely give music more time, learn. But I don't know. I think I would have done the same. Okay, same ही. जैसा है वैसा ही कर. Because दोनों मेरे काम, मेरी जिंदगी के अंदर दोनों processes की बहुत significance रही और उन्होंने बहुत contribute किया. So I can't say कि I let go and because उसने भी उतना ही contribute जो आज मैं हूँ उसके बगैर नहीं हो सकता. वो भी एक part है. आपने आपका एक गाना था, मुझे उसकी प्रोनाउंसिएशन से नहीं आती, प्लीज करेक्ट मी. मारे कक्के नहीं, मारे ककिया को छेड़ो ना पिया. हाँ, तो ये बेसिकली लम्स के किसी जमाने में किसी दोस्त का नाम था कक्की, राइट? उसके थ्रू बना, राइट? तो आई थिंक दिस इज आल्सो लिंक्स टू दैट कि यार लम्स में था तो वो देखो वो चीज थी, वो गाना था, वो बना, राइट? मैंने अपना जो सारी कॉम्पोजिशनल स्किल्स थी वो भी ज्यादा मेरी लम्स में, सॉन्ग राइटिंग जो मेरी शुरू हुई वो लम्स के टाइम में ज्यादा शुरू में थोड़ा हो, बट दैट्स व्हेन आई रियली रोट द मोस्ट ऑफ माय सॉन्ग्स. वैसे मुझे ना गाने की लम्स के अंदर बड़े म्यूजिशियंस थे, मेरे बड़े लोग थे, गिटारिस्ट थे, ये थे बहुत अच्छे गाने वाले, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. वी यूज्ड टू डू गिग्स टुगेदर. लम्स के गिग्स मशहूर थे यार, लम्स का बैंड मशहूर. हमें याद है कैसे घुसते थे लम्स में, और लम्स से हमेशा बड़े अच्छे सेट्स ऑफ म्यूजिशियंस निकलते आए हैं और होता है. नाइस. सो वो तो सीन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, will we be seeing another season of Coke Studio Explorer? That you have to ask Coca-Cola. Okay. What's your interpretation of the song Sari Raat? I have no interpretation. The only thing मुझे पता है अभी तक इसकी अभी तक मैंने इसकी लिरिक्स पे भी नहीं फोकस किया. मेरे ज़हन में इतनी उसकी मेमोरी एच्ड है बिकॉज़ दैट सॉन्ग ये तो कोक स्टूडियो में जाके खुला और इसके ऊपर एक एक नई, बट इनिशियली इट वाज मेड फॉर अ टेलीविजन सीरीज, अ हॉरर टेलीविजन सीरीज इन लाहौर. Yeah, it was the soundtrack for it. अक्स कदा निकला था. रिनूर का दोस्त था शाह बिलाल. Okay. उसने बहुत वो प्रोडक्शन, वीडियो के प्रोडक्शन के बड़े काम करता था. उसने एक टीवी सीरियल बनाया था अक्स कदा के नाम से. तो ये अक्स कदा का साउंड ट्रैक के लिए गाना बना था, सारी रात जागा. इंटरेस्टिंगली उस ड्रामे के अंदर एक एपिसोड में मैं भी था. उसके अंदर ना मेरे ऊपर वो स्पेगेटी लगा के पूरा मेकअप करके मैं वो एक एलियन वर्ल्ड का ना डॉक्टर बना हुआ था और मेरी पूरे फेस के ऊपर ना अजीब सा मेकअप, वो स्पेगेटी लगा के लाइक बिल्कुल एक अजीब सी बदरू सी चीज में लग रहा था. और इतनी गंदी एक्टिंग की थी, इतनी गंदी, but it was one of my one and only TV stints. So yeah, so that memory is so etched in my head. मुझसे कोई सारी रात के बारे में सवाल पूछे तो सबसे पहले मुझे यही बात आती है, वो वाली मेमोरी आती है. The question is asking कि how can I get motivated about this hobby, which he says कि he has an electric guitar, लेकिन he is not able to continue it. So how can he get motivated to start this hobby? Well, I think there are a lot of different people will say different things. I'll say express yourself. यार hobby सब music की cool चीज़ ये कि it's not just a hobby. It's once you play even for yourself, it's like it's medicine more than a hobby. It's a good. It's like आपको ठंडा करता है, आपको relax करता है. It's like a mental. कोई आपकी mental processes की resolution होती है. So think of it as a part of you. Think of it as something that you want to grow with, or something that you want to live with and enjoy it. Express to yourself before anybody else. I think that's very important. Instead of seeking somebody's approval, find your own approval and find music as a way to help you and grow and evolve and feel better about yourself. There are so many ways of using. Even if you're playing guitar, किसी दिन आप गुस्से में हो गए, आप घर में जाके बैठ के riff बजा दो. You might come up with an amazing riff, or you might just get
you resolve your frustration by playing at 220 Very BPM, therapeutic, 400 very BPM. great. Yeah. Great. Which Pakistani song you wish you had sung? None. It is. It's not a question of wishing I had sung. If I like it, I will sing it. Okay. देखिए ना, वो उस वक्त का जो गाया उसकी रिकॉर्डिंग में गाना नहीं, सॉरी, कोई रीजन नहीं. गाना जो कि you would like to, I don't know. बहुत गाने अच्छे लगते हैं मुझे. एक अभी मुझे वो क्या था, नूरजहान ने एक फैज अहमद फैज की गजल गाई थी, नज़म पढ़ी थी, और फिर वो फिल्म में भी आई थी, कई पढ़ी थी, बट एक तो बड़ी शुरू हुई थी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मान. ठीक. तो इसकी तो हमने एक वर्जन सुना हुआ है, ये अभी अली अदनान है, इनको भी मैं जानता हूँ, और वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो ये अभी मैंने उसका एक और वर्जन सुना. हमने वो फिल्म वाला वर्जन तो सुना हुआ है, उससे पहले एक वर्जन था, एक नूरजहान ने परफॉर्मेंस की थी, उसके ऊपर नूरजहान का अपना कॉम्पोजिशन था, तो वो शी वाज आस्क्ड टू सिंग इट. तो उस वक्त वो मार्शल लगा हुआ था, तो नूरजहान को स्टेज पे चढ़ने से पहले कहा कि आप नहीं पढ़े गाएंगे. नूरजहान ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी मैं पढ़ूं ही जाऊंगी, एंड शी went up on stage and sang that. And Faiz Ahmed Faiz was in jail at that time, and then Faiz Ahmed Faiz, when he came back, this Ali Adnan narrated me this whole story. Ali Adnan is a in depth into the music of our culture and everything. Oh, he knows a lot. So the second recording of that which he sent me was actually done at my grandfather's house, because जब फैज साहब रिहा हुए तो वो रजा क्या मिलने, फिर उन्होंने वहाँ पे नूरजहान भी वहाँ है, और there she sung that मुझसे पहली सी मोहब्बत. That specific rendition of it, I think I love it. As I said कि यार एक गाना जो है ना, अब मुझसे पहली सी मोहब्बत आपने सुना, फिल्म का गाना, अब मैंने सुना, मैं उसको मेरे जहन में है, मैं उसको गाए जा रहा हूँ, मगर मैंने उसका एक और वर्जन सुना जो उससे भी पुराना था, या शायद उसके एक और वर्जन शायद उसके बाद का भी कोई और बना ले. मैं फॉर एग्जांपल बात, so as I said, it keeps growing, it keeps evolving. That's why I will not stick to the idea that I'll want to sing. That recording might have been the worst version of that song, to be in all, might have been, हो सकता है. You get my point? It was just recorded. बाद में कई साल के बाद उसका और बेहतर वर्जन निकला, या कई साल पहले बिल्कुल एक. So yeah, it's मेरे लिए, मैं अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है मैं उसको गाऊंगा, उसमें क्या. ये हुई बात. तो अली, किसी ने गाया मैं भी गाऊंगा, आप भी गाए. ठीक है, डन है. तो हमजा, बस ये आखिरी छोटी सी रिक्वेस्ट है इससे पहले कि हम बंद करते हैं कॉल. 2 लाइनें कोई सुना दें अगर आप. पता बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करी जा रहे हैं कि कुछ. कौन सा गाना आप जो कहेंगे, आपको जो अच्छा लगता है. मुझे तो आपका तिनक पसंद है वैसे तो. आपको तिनक दिन अच्छा लगता है तो आपको तिनक. तिनक तिन्ना तिनक दिन ये तिनक दिन हाय हम, तिनक दिन तुम तिनक दिन मैं तिनक दिन भूले सब, तिनक दिन जले तिनक दिन बने तिनक दिन हारे हम तो, तिनक दिन किए तिनक दिन तोड़े तिनक दिन वादे करी 100. Nice, amazing. That was dedicated to you, Sabine. Thank you so much, Hamza. It was a pleasure having you on the show. Thank you so much. अपना बहुत ख्याल रखें, और आपकी बीवी बच्चों को भी थैंक यू बोलिएगा कि उन्होंने आपको टाइम निकालने दिया, because I know you're traveling. Thank you so much. नहीं, I'm back. Now I'm here. Now तो टाइम ही टाइम है. अब छुट्टी शुरू हो गई. Not that के पहले छुट्टी नहीं थी, but lovely talking to you. Allah Hafiz.